کلام میں سے سیکھیں گے خدا کی رحمتوں کی بخشش کیا ہے؟ خدا کے رحمتوں کی بخشش. اور آج ہم رومیو کے خاتمے سے اس کا 11واں باب ہے، اس کی 29ویں آیت سے لے کر ہم 30 آیت تک پڑھیں گے. 2 آیتیں. جی آج کے خوبصورت زندہ پاک کلام میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط. جی اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے، مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا. مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر کیا ہوا؟ رحم ہوا. آمین جی. آمین. سپر آمین. ہاللویا. خدا کی رحمتوں کے سب سے تم پر کیا ہوا؟ رحم ہوا. کیا ہوا بھائی؟ اب بات یہاں غور سے سننے والی ہے. جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ نے توجہ دینی ہے. جو کوئی آئے گا وہ بیٹھ جائے گا، جو کچھ اندر جائے گا وہ آپ سب تک پہنچے گا، اور جو کچھ آپ سے بولا جا رہا ہے اسے سننے کے لیے آپ کان اپنے کھڑے کر لیں، یعنی ہوشیار ہو جائیں، اپنے کانوں کو تیز کر لیں اور اپنے سینس کو عمل میں لائیں، تاکہ میں نے آج کچھ سیکھنا ہے. آج خدا کی رحمتوں کی بات ہے، خدا کی رحمتوں کی بات ہے جو آج آپ کے اور میرے لیے. اور جب ہم خدا کی رحمتوں کی بات آج سنیں گے، آج ہم کریں گے، تو آج خدا کا کلام جو ہم نے رومیو کے خط میں 11 باب کی 29 آیت میں سے تلاوت کیا، وہ یہ بتاتا ہے اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے کیا ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. جب اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا تو اس نے برکت دی. جب اس نے نوح کو کہا کہ میں تجھے بڑھاؤں گا، سیم ہم یافت کا خدا دنیا کی تمام قوموں میں تجھے کیا کرے گا؟ سربلند. جب خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، جب خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، جب آپ کو خدا رحمت سے بھرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کی نعمتوں کے لیے، آپ اس کی برکتوں کے لیے، آپ اس کی بخششوں کے لیے اور آپ اس کے فضل کے لیے اس کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. اس کی نعمتیں، اس کا بلاوا کیا ہے؟ لا تبدیل ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. جب خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے تو آپ کی برکت کو کوئی روک نہیں سکتا. جب خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے درمیان آ کر آپ کے لیے خدا کی بات کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے. اب بات جو ہے ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں ذرا اس پر توجہ کریں. جو حوالہ پھر سے میں بولوں گا 30واں، وہ یہ ہے، یوں لکھا ہے کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے. کیونکہ بہن جی میں ادھر بول رہا ہوں آپ سے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے کیا تھے؟ تم کیا تھے؟ خدا کے. مگر ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے. ہاللویا. اگر وہ نافرمان نہ ہوتے تو خدا آپ کی طرف نہ آتا، خدا کی برکتیں آپ کے لیے جاری نہ ہوتی. یہ تو اس نے 12ویں باب میں سے وعدہ کیا تھا، میں تجھے برکت دوں گا اگر تو میری بات کو مانتا رہے گا. لیکن وقت آیا کہ اس نے لوگوں نے وہ اپنے گھر آیا، بول چھڑو خدا دا باستا جے تانوں، وہ اپنے گھر آیا بوا ٹولیا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے اپنوں نے کیا قبول، اور نافرمانی کے سبب سے اب ہماری طرف وہ آ گیا جتنوں نے اسے قبول کیا. کیا لکھا ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادے سے، وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ہاللویا. کس سے پیدا ہوئے؟ آپ یہ تو دیکھیں آپ پیدا کس سے ہوئے ہیں. یہ تو دیکھیں آپ پیدا کس سے ہوئے ہیں. آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو جنم دینے والا کون ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. کیا ہے؟
ये खुदा का आपको पैदा करने वाला कौन है? आपको पैदा करने वाला कौन है भाई? ये खुदा का कलाम है। कौन है? कौन है भाई? पैदा करने वाला ये है ना, बोल सकते हो ना? तो जब ये पैदा करने वाला है तो हम तो पैदा करने वाले की नहीं सुन रहे हैं। हम जिस दिन हमारी कौम, मैं ये बुलंद आवाज से बात कर रहा हूं, जिस दिन हमारे घराने, हमारे खानदान खुदा के तकद्दस को, इबादत के तकद्दस को जान जाएंगे कि उसका वक्त क्या है, उसका तरीका क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसकी इज्जत क्या है, हम में से हर एक बड़ा दौलतमंद होगा, बड़ा रूहानी होगा। ये बात आज अपने दिल में बैठा ले, ये बात आज अपने दिल पर लिख ले कि मैंने अपने टाइम की कदर करनी है। मैंने नहीं देखना कोई आया है, कोई घर में है, ये कोई मेहमान है, कोई खाना बना रहा है, कुछ भी है, सब छोड़े और खुदा की इबादत करके 1 महीना चेक कर ले अपने आप। अगर 10 बजे का खादम टाइम देता तो आप 9:45 बैठो, पता चल जाए खादम को कि मैं क्यों 10 बजे तैयार होना। लेकिन क्या है कि हम खुदा की रहमतों की बख्शिश की कदर नहीं करते, क्योंकि बख्शिश है ना मुफ्त में दे दी गई है, कोई मेहनत नहीं की है, कोई उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। अब बात याद रखें, रोमियो का खात बताता है कि खुदा की रहम की बख्शिश क्या है, वो बेइंतहा तारीफ के लायक है। बख्शिश क्या है खुदा की? बेइंतहा तारीफ के। कैसे? खुदा की दौलत क्या है? हिकमत है, इल्म है, फैसले हैं, पर है, और पर से मुराद है कि बेइंतहा। पर का जो मतलब है बेइंतहा, जो ऊपर लिखा है। अब अकीक है, अदराक से परे है। अदराक से क्या है? अब बेनिशान है, ये क्या है? अब बेनिशान है। अब बेनिशान है, इसकी वजह क्या है? इसके हम 3 सवाल देखेंगे। बेनिशान क्यों है? अगर ये किसी इंसान का निशान दिया हुआ होता, अगर इंसान ने किया होता तो राशिद साहब ये हम तो छाले मारते। भाई मेरा तो यूट्यूब चैनल है, मेरा तो इंस्टाग्राम है, मेरा तो फेसबुक ट्विटर पर भी हूं, मैं तो हर जगह पर हूं, जिधर उंगली लगाओ मैं सामने बैठा हूंगा। क्या कर रहा? टिकटॉक देखता हुआ, फिल्में देखता हुआ, मशहूरियां देखता हुआ, ड्रामे देखता हुआ, मूवी देखता हुआ। क्या कर रहे हैं हम खुदा के लोगों? हम खुदा की नेमतों की बख्शिश की परवाह नहीं कर रहे। अब देखें, अब खुदा की अकल को किसने बनाया? कोई बनाने वाला है? मुझे बताइए भाई। योग की किताब अगर मैं वैसे हवाला दूं तो लिखा तो कहां था जब मैंने जमीन आसमान बनाए। कहता है मर्द की मानद अपनी कमर क्या कर ले? ये कर लो। कहता है मैं तुझसे सवाल करता हूं, तो कहां था जब मैंने आसमान को ताना? कितने से? जब मैंने जमीन की बुनियाद के कोने का सिरे का पत्थर बैठाया, तू कहां है? इसलिए तो यशायाह 55 की 9 क्या कहते हैं? एल्डर डैनियल पढ़ेंगे यशायाह 55 उसकी 9 आयत क्या हमें बताती है? खुदा के कलाम में यूं लिखा है, हाँ जी, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से क्योंकि जिस कदर क्या है? आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से क्या है? ये सही कहा है कि नहीं खुदा ने? नहीं जैसे कहते मलाना क्या वो ख्याल है रात जाने हैं क्या कोई वेंदा पे मिला लेनी है ख्याल ख्याल है, मिला लेनी राधे। कौन देख रहा है? क्या किसी को पता है? नहीं। खुदा के लोगों, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। खुदा का कलाम घरों में रखने के लिए ये नहीं है कि आपका कलाम जो आपके पास है, बहन आपसे बात कर वो चली जाएगी। खुदा का कलाम जो आपके घर में पड़ा हुआ है, ये आपको फायदा नहीं देगा। कोई मुझे साबित कर दे कि फायदा देगा। आप पढ़ते नहीं है। मैं अगला सवाल क्लियर कर दूं। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो इसका फायदा है? बोल छोड़ो।
तो अगर पढ़ेंगे तो किसको फायदा है? आप खुदा के बारे में जानेंगे जैसे आदम जाने कौन खुदा को अकल, किसने अकल दी? किसी ने नहीं दी, वो खुद बनाने वाला है। उसने कहा तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं समझ आई? ख्याल तुम्हारे ख्याल वो कितने डूब गए हो? तुम्हारे ख्याल ख्यालों से बुलंद है। मैंने ब्रेक ना रखा किया गया जिस कदर जमीन से आसमान बुलंद है उस कदर मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है, मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद है। तो फिर हम कौन बना सकते हैं? यसाया 40:13 क्या कहती है? अब ये तो हो गया कौन खुदा का सलाहकार हुआ? कोई सलाह दे सकता है? वो ताई तो ने कहा मेरी राहें बुलंद है, मेरे ख्याल बुलंद है। जल्दी करें जी, जल्दी जिसने करें। खुदावंद की राह की हदायत की, किसने खुदा की राह की हदायत? हाँ, उसका मशीर होकर कौन उसका मशीर हुआ? मशीर मशवरा देने वाला होता है। हाँ जी भगत साहब, मशीर मशवरा देने दिता किसने उन्हें मशवरा? मेरे हाल कोई देंदा तो उन्हें पुट्ठा ही देना सी। कहना खुदा ए एरिया च बारिश नहीं तो पानी तो इधर पा देनी करनी है, इधर पानी छोड़ दे, मेरी गल नहीं सुनते। जिस तरह शागिर्द यीशु को कहते हैं तो हमें इजाजत दे कि कुफ्र नहूम में हम आग नाज़िल हो जाए। कहता है होश करो कि तुम किसके साथ रहते हो और किस रूह के हो। हमें खुदा ने अच्छा किया है, हमें सलाहकार ने लिया, बल्कि वो हमारा सलाहकार बना है कि तौबा कर, बदी न कर, लालच न कर, झूठ न बोल, फरेब न कर, रियाकारी न कर। सारे काम तो करने लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाइबल जो सिखा रही है। फिर आगे क्या लिखा है? अय्यूब 41:11 क्या कहती है? क्या खुदा को किसी ने कुछ दिया है? असी नहीं देने, असी देने लगे पता क्या उन्हें पादरी नु देना है, पादरी नहीं हीरे। जब आपका ये नजरिया तो फिर आप फेल है। आप खुदा को देने वाले हैं, पादरी को कोई देता तो कभी 1 रुपया भी नहीं देगा। मैं आपको सही बात करूं, ये तो खुदा को देने वाले होते हैं। वहां क्या लिखे? खुदा खुशी से देने वालों को, पादरी खुशी से देने वाले को प्यार करता है। सही वाला केड़ा है? खुशी से देने वालों को दी। हैं? मैंने समझ नहीं आई था। तो फिर आप किसको देते हैं? खुदा आप खुदा को, मैं आपको नहीं कह देता हूं, आप ईमानदारी से खुदा को दे, डंडी ना मारे, दावा ना करें। अगर नहीं दे सकते तो दावा ना करें, अगर दे सकते हैं तो खामोशी से देना शुरू करें, ये ना कहें। और देकर देखें आपके अंबार खाने, आपके घराने, आपका खानदान बरकत पाएगा, बरकत पाएगा, और आप खुदा की उन बख्शिशों को जान लेंगे जो आपके लिए उसने रखी हुई है। हालेलुया। इसलिए बाइबल आगे हमें क्या सिखाती है? आगे हवाला किसका है? रोमियो 12वां बाब, पास्टर मूसा क्या लिखा है भाई? भाई यहाँ जो भाइयों लफ्ज है ना, अगर वहाँ इंग्लिश बाइबल वर्जन में देखे तो लिखा है ऑल पीपल, वहाँ लिखा है ऑल पीपल, तमाम लोगों। यहाँ उसने थोड़ा सा भाइयों का कहा क्योंकि भाई घाटी बात बहना पसंद करते हैं, पर जेडे करते ने वो नहीं रहते, कोई आया गया उन्हें पहुंचना नहीं होता। बस है भाइयों, मैं खुदावंत की रहमते याद दिलाकर हाथ जोड़ता है। की करता है बुआ जी? की करता है? दो बुआ ने ना नहीं मिलिया। की करता है? हाथ जोड़ता है कि नहीं? हाथ जोड़ दे, खिलाफ जोड़ दे। कौन? ठोकर साहब हाथ जोड़ दे खुदा, भैन अपना ये हम हाथ जोड़ दे खुदा। हाथ जोड़ के की आंदा है? वास्ता दी खुदा दा टाइम ना बात क्या की आंदा है? हूं नहीं बात आंदी पैदा रख
ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਲੋ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋੜੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਨਾ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚੱਲ ਜਦੋਂ आखिरी गीत का एंड लगा पता चल जाएगा 11:30 पादरी खलो जाएगा नहीं मैं आपसे कहता हूँ यहाँ देखे वो कह रहा है मैं खुदा की रहमते याद दिलाकर हाथ बांधता हूँ कि अपने बदन कितने बदन अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो एक मिनट की करना है नजर समझ दो की होंगी दे दो की करो दे दो नजर करो क्या करो अपने बदन खुदा को नजर करो नजर करना कुर्बानी देना है ये कुर्बानी के लिए है और कुर्बानी देनी क्यों है कि ये खुदा को क्या है जिंदा कुर्बानी कौन सी भाई जिंदा कुर्बानी खुदा को क्या है कि मुर्दा केड़ी कुर्बानी पसंद है केड़ी कुर्बानी पसंद है केड़ी कुर्बानी पसंद है जिंदा कुर्बानी पसंद है किसी मरी भी दी है जनाब मरी कुर्बानी किसी दी है उन्हें मैं भैन अपनी पूछना मत एवं उधर ध्यान करते हो क्यों शजीला मरी कुर्बानी कोई देना भैन रहना है की आंदे रोत साग दी है मुंह तो है ना बोल तो सकते हो ना हसन ले नहीं मैं क्या क्यों जी गिल साहब नवीद गिल साहब मुर्दा कुर्बानी नहीं होंगी ये तो दे छड़ते ने बहुत खोल के उत्थे लाल कर छड़िया हमें बहुत ही बरकत मिलेगी ये मैं कहा कुर्बानी बड़ा अपनी जगह है खुदा अपनी जगह है फिर वो चुनी हम खाएगा हम ये कर रहे हैं ने कहा जिंदा पाक और खुदा को क्या है कुर्बानी केड़ी चाहिए पहली केड़ी है फिर केड़ी है फिर तीन ने ना करना जिंदा हो गई पाक हो गई और खुदा को पसंदीदा तो हमें भी तो पसंद है ना मैं कोई मरी मुर्गी लाल करके दे दे सिला दे मैंने खुद एक दुकान पर देखी वो तोड़ रहा था मरी उसने लाल की मैं आज तक वो दुकान तो नहीं है मैं ना की पता है मैं आपसे कहता हूं अब खुदा को पसंद है तो उसके रहम की बख्शिश को जानते हुए आप क्या करें उसकी इबादत करें उसके रहम को जानते हुए उसकी क्या करें पढ़िए रोमियो 12 बाब की 3 से 8 है जिसका भी नंबर है जी नसीम बेटे आपका हाँ 3 है ये रोमियो 12 बाब की 3 आयत है रोमियो पढ़े बेटे ठीक है पढ़ रहे हैं मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा समझो ना हाँ जी जैसा समझना उससे ज्यादा अपने आप को क्या करो ऐसी समझ नहीं आना है समझ नहीं आ बड़े लोग समझ मैं ढेर इतने कर देना उन्हें फिर भाई और मनने सही कह रहे किसी कोई चाय के कपड़े में फिर नहीं टुरेगा अगे पिछू एंज नहीं टुरेगा तो मुड़ के एंज नहीं टुरन लग पेगा कदे एंज करेगा कदे कोठी एंज करेगा कदे फोन लैके फूका मारेगा
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ये किमें आ गए? नहीं, आप देखें क्या लिखा है, पढ़िए जरा। बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के माफक ईमान तकसीम किया। ईमान भी तकसीम होंदा जे, राशन तकसीम होंदा है ना, पर रोज़े उन्होंने जो लिया समझे होने तकसीम हो रहा है। ये ईमान की बात है, ईमान तकसीम हो। हाँ, एतदाल के साथ यानी जरूरत के मुताबिक अपने आप को वैसा समझे। आगे जल्दी करें। जिस तरह हमारे बदन में बहुत से क्या है, अज़ा है। आप हम खा सकते हैं रोटी? हेलो भाई, अच्छा इधर मैं खड़ा, आखिर रोटी खा सकती है? कान में पानी पी सकता है? हैं? वाल वेख सकते हैं? हाथ बोल सकता है? बोलता क्यों नहीं बोलता? माँ कहेगी वो बोतल वाले गिलास लाना बेटा, बहुते पुराने बहुते हो जाए ना, फिर की कहना बेटे वो बोतल वाला गिलास लाना। वो बोतल वाला गिलास नहीं, गिलासियां होंदियां ने। काम पूरा कर लिया, माँ ने समझाया, वो मामा जी लिए हाँ, सब बाइबल बता रही है हमारे बदन के अज़ा बहुत से हैं, हर एक का अपना काम है, और अपने अपने ईमान और नेमत से वाकिफ होकर उसी के बदन में रहते हुए वो तमाम काम सर अंजाम दे जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। खुदा ने हमें बुलाया ना, तो किस लिए बुलाया? पढ़े जल्दी से। उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं, उसी में एक बदन है, आपस में एक दूसरे के क्या है? क्या है भाई? आपस में एक दूसरे के क्या है? काशी आपस में एक दूसरे के क्या है? अज़ा है। आगे, क्योंकि उस तौफीक के मुताबिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली है। अब खुदा के फजल की नेमतों की बारी आ गई है। अब क्या मिली है, जरा पढ़ें जल्दी से। इसलिए जिसको नबूवत मिली हो पादरी ना बने, और नबूवत करने वाला आखेगा मैं परस्तार बन गया। जिमें कईयां ने लिखा है फलां पास्टर एंड परस्तार, किसी ने लिखा परस्तार एंड पास्टर। वो पता तो कर लो तुसी है की हो। कईयां ने लिखा रेवरेंड, कई बिशप बने जनीम हकीम जान दे खतरे। पढ़ना लिखना ना आंदा है तो बिशप बन के बह जाएंगे। मैनू भी बड़े ने क्या बन जाओ। मैं क्या नोटिफिकेशन दो सरकारी तो फिर बनागा, ऐसे नहीं। अभी भी मुझे सुबह फोन आया, मैंने कहा नहीं सरकारी नोटिफिकेशन। हाँ, इधर पास्टरों का थानेदार मैं जरूर हूँ, वो मानते हैं मेरी बात, गवर्नमेंट भी मानती है, पास्टर सुबान भी मानते। एल्डर साहब सही गल है? हाँ जी सही गल है जी, उसी तरह पूछ लो, सही गल है, पूछ लो ना। अब ये तौफीक है, ये बरकत है कि आपकी कोई सुन रहा है या आपकी कोई इज्जत करता है। तो ये कहाँ से? फजल के वसीले से। अगर नबूवत हो तो उसके मुताबिक काम करें, हैं? खिदमत हो, पढ़े भाई। महला हो तो तालीम दे, अगर नासा हो तो नसीहत करे, खरात बांटने वाला जान दे ढोल बजा के बांटे, मैं देन लगा दे। हाँ जी अगे पेशवा किवें करे भाई? सारे दसो, मैनू नहीं समझ आती। पेशवा क्या नहीं करे? सही दसो, सरगर्मी की होंदी है? पूछे करे ना, दसो ना हाँ कर दे जाए, पूछे करे
بولے ہوں کہ دی بات نہیں نکلتی تھی پوچھے کرے کہ نہیں سرگرمی کا یہ مطلب ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی سرگرمی کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے سختی نہ کرے پوچھے سست نہ پوے کائے نہ پوے جا کے پوچھے کچھے یہ بھی بیچی ہے ہاں جی پوچھے کچھے نا جاوے گا تو پوچھے کچھے گا ڈانٹے گا غلط تو ہیں کنوں کنوں پسند ہے ہاتھ کھلا رہا ہونے کے خلاف نہیں بولتے ہیں کیڑا چاہتا ہے کہ سرگرمی نہ کام ہوں دارے تو پوچھ گیچ ہوں دیرے پادری پوچھ گیچ کرے اینج کرو ہاں اتھے کیا ہوتا رہ جائے پھر ڈال دیا تو پھر نہ کرو اینج کرو چلو شکر ہے ٹھیک ہے جڑا نہیں ہے انہوں خدای پوچھو اب ناقص ہو تو کیا کرے ناسا ہو تو نصیحت کرے آگے سخاوت سے بانٹے آگے پیشوا سرگرمی پیش ہاں جی آگے شکریہ رومیو 12 باب کی 9 سے 13 کس کی ہے باری رومیو 12 باب جلدی کیجئے جی ٹائم آگے جا رہا ہے کس کی ہے تو یہ پڑھ دیں آپ رومیو 12 باب محبت بے ریا ہو بدی سے نفرت رکھو محبت کیا ہو بے ریا ہو محبت کیا ہو بدی سے او محبت کیا ہو بے ریا ہو کلے کا رات ہے کیا ہو بے ریا سمجھ دیو اولے چھ ریاکاری نہ ہوئے مقصد کوئی نہ ہو کوئی مقصد نہیں ہونا چاہتا کیا آپ نے سارے دسو میں اگر ہم کوئی خدا کا کام کریں تو اس میں ہمارا مقصد ہو تو پھر خدا خوش ہوگا اگر بے مقصدہ کریں تو پھر خدا خوشی سے دے گا کہ نہیں آگے بدی سے نفرت رکھو چپ کر کے موبائل پہ دیکھو نیکی سے لڑتے یہ رہو ہو گئی یار بدی سے کیا کرو کی کرنا ہے بدی تو بدی گناہ بدن سے ہی نہیں کرنے ہوتی بدی آنکھوں سے بھی دیکھنے سے ہو جاتی ہے بدی سوچنے سے بھی ہو سکتی ہے بدی بولنے سے بھی ہو جاتی ہے اور بدی خیالوں سے بھی ہو سکتی ہے آگے کیا لکھے جلدی نیکی کریں سے لپٹے رہو نیکی سے لپٹے رہو برادرانہ محبت برادرانہ محبت میں ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے یعنی آپس میں پیار کرو عزت کے روح سے ایک عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو چھوڑو کوشش میں سستی نہ کرو سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو روحانی جوش میں بھرے رہو کنے پڑے کنے کرو سارے دعا کر دو خود کو پوچھے جا کے یہ آج کا سوال ہے آپ کتنے روحانی جوش سے بھرے ہوئے ہیں آج یہ لکھ کے لے جائیں آپ نے اگلے اتوار بتانا ہے تو یہ خیال کرو میں بولتا نہیں یہ نہیں میں گل بولتا پوچھنے والی نہیں میں بولتا اور سارے کام بولتا روحانی جوش میں بھرے رہو بھرے رہو خداوند کی خدمت کرتے رہو خداوند کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش اب امید میں خوش ہو جاؤ مصیبت میں صابر آج دا دور کے جو کہن امید نہیں ہندے وہ کہیں گے کڈو چھڈو ہور لے آؤ ہمارے نصیحت میں بڑا رجحان بڑھ رہا ہے جس بات کی تفتیش عالمی لیول پر بڑے بڑے خادموں کو ہو گئی ہے اطلاق دینا تو دوسری روٹی کرنا یہ رجحان بن رہا ہے ہلو آدموں ادھر دھیان کرو ہوا تہاڈی بھی باری ہے بچ ہوا بھی مانتی ہے تو پھر تاں کام ہوتا ہے طلاق دینا اور دوسری شادی کرنا یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ نہیں بولو آدموں ہاں جی آدم صاحب سے نہ لاؤ منہ تو بولو ساری کیوں بہنوں بیبیوں ہے کہ نہیں ہے ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں اس کے لیے دعا میں بیٹھنا ہے ہمیں دعا کرنی ہے خدا یہ لعنت ہمارے ملک سے ختم ہماری قوم سے ختم اس کا سبب کیا ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں آگے کیا پڑھیے امید میں خوش امید میں خوش مصیبت میں مصیبت میں صابر ہو جائیں
दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में सुस्त। यार चुप कर दो। दुआ करने में दुआ करने में बात आई हमारी बात थोड़ी सी आई। दुआ करने में मैं कहीं जा रहा हूँ तो गिनती करी जाए नहीं बोलना आज अच्छे से। दुआ करने में दुआ करने में दुआ करने में दुआ करने में वो बहन के लिए बोलेगी दुआ करने में यारो बहन हो ना करना। दुआ करने में मशहूर। दुआ करने में नहीं आएगी बात है मैंने कहा। दुआ करने में तिन्ने ही तुसी तिन्ने 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 कितने पैना कह लो। दुआ करने में दुआ करने में नहीं आवाज आएगी लगे रहो। दुआ करने में दुआ करने में पिछली लाइन है जो थले बैठे। दुआ करने में पढ़ाइए थोड़ी। दुआ करने में शुक्रिया तो हो गया 10 को 12। दुआ करने में क्या नाम में हालेलुया। दुआ करने में मशगूल रहो। आ जाओ फिर रोमियो 12 की 14-21 क्या कहती है जल्दी पढ़िए। जो तुम्हें सताते हैं उन्हें सही सताओ। जो तुम्हें जो तुम्हें उन्हें उनके लिए क्या चाहो उनके लिए क्या चाहो। और आगे लानत लानत आगे खुशी करने वालों के आगे आही हुण की बनाया साढ़े बहुत सारे खास बने जिदा कोई मरिया है शुक्रगुजारी खुदा तेरे जलाल के लिए तेरे मर गया चंगा हो गया ते जिथे रोन दी वारी होएगी ना उथे शुक्रगुजारी ते जिथे शुक्रगुजारी उथे रोन ना पैना पुट्ठा बजान चले यार। बाइबल कहती है खुशी करने वालों के साथ रोने वालों के साथ आगे आपस में एक दिल रहो। आपस में क्या हो जाओ क्या हो जाओ क्या हो जाओ भाई यकदीन लो। आगे ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। ऊंचे ऊंचे ख्याल है आगे बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो। अपने लोगों की तरफ मतवज्जो हो। जल्दी करें। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। बदी के एवज किसी से बदी ना करो। बदी के एवज किसी से बदी ना करो। बल्कि लिखा अपने लोगों की तरफ मतवज्जो बदी के एवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी है उनकी तदबीर करो। उनकी क्या करो तारीफ करो तस्दीक करो। आगे सबके साथ जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ सबके से साथ सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। क्या कहा तीसरी बात उसने आपको हिलाया भी था। सबके साथ क्या करो सबके साथ क्या रखो क्या रखो जी मेल मिलाप रखो। क्यों वजह क्या है। रोमियो 12 की 29 क्या कहती है जरा पढ़िए जरा। मेल मिलाप की वजह है कोई वजह तो है ना। हाँ? पढ़ो उसने गलत लिख दी है 12 बाब की 12 बाब रोमियो 12 बाब 21 शायद पढ़ दे। बदी से मगलूब ना हो। क्या करो बदी से मगलूब बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी बल्कि नेकी के जरिए क्या करो। बदी पर आगे 19-20 पढ़ो ना। ऐसी दो अपना इंतकाम ना लो। इधर ध्यान करो ਇੱਥੇ अपना इंतकाम
बल्कि गजब को मौका दो, गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है, लिखा है, खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा इंतकाम लेना काम, आगे बदला मैं ही दूंगा। बदला मैं ही दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? आगे पढ़ते जाएं जल्दी से। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला। उसको खाना खिलाओ। ये लिखे हैं हवाले, इस्तिस्ना में लिखे हैं, मिसाल की किताब में लिखे हैं, ये हवाले लिखे हैं। जब बाइबल फरमाती है लिखा तो फिर लिखा है। समझ आ रही है कि नहीं? आगे अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, अगर प्यासा हो तो बुआ टोले, पानी पिला। आगे ऐसा करने से ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आगे बदी से मगलूब ना हो, बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब हो। नेकी के जरिए क्या करना है? नेकी के जरिए खुदा की रहमतों की बख्शिश है। क्या है? खुदा के रहम की बख्शिश बेइंतहा तारीफ के लायक है, अकीक है, बेनिशान है, मकबूल इबादत का तरीकाकार है। खुदा की अकल की, खुदा के फजल की नेमतें पेशवा सरगर्मी से अखलाकियात की बात है। अखलाकियात हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि किसी को सलाम करो या ना करो। अखलाकियात किसी का एहतराम करना बच्चों को नहीं सिखा रहे। तेरा बड़ा है तू सलाम कर, तो जे कोई कर लेगा तो क्या अम्मी 10 बारी नंगी तो फिर 10 बारी सलाम करनी। तो बंदा पूछे तो 10 रुपये देने होंगे ने नाल। अखलाकियात अपनी औलाद को सिखाएं। अगर आज दुनियावी बात करने लगा हूँ, सबसे 1 नंबर पर अखलाकियात में है तो वो जुबान है। वैसे तज़ीम से एक दूसरे की इज्जत करेंगे, लेंगे भी तब भी इज्जत से, देंगे भी तब भी। तुसी दे लो तो फिर तरले पा के लो पाकिस्तान रो रो के देंगे, रवा हरवा के देंगे। नहीं, हमें अखलाकियात को सीखना है। अखलाकियात क्या सिखाती है? कि हम बेरिया हों, बदी से नफरत रखें, नेकी से लिपटे रहें। और फिर आगे लिखा है, सारा कुछ आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आइंदा के लिए हमारे वास्ते खुदा क्या चाहता है कि हमने इंतकाम नहीं लेना, दुश्मन को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, नेकी करना है। और खुदा के क्या है? खुदा ने हमें करके ये दिखाया है। खुदा ने हमें करके दिखाया सब कुछ खुदा ने। आइए सब कुछ कर लेते, अपनी आंखें बंद कर लें और आज इस बात के लिए